یعنی قرض حسنہ کی صورت میں جو میں دے رہا ہوں، اور صاف واضح ہے کہ جو اس میں وفات بھی پا چکے ہیں ان کو میں معاف کر دیتا ہوں، اور میں نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر میری موت ہو گئی تو یہ قرضہ معاف ہے۔ الحمدللہ عیسائی برادری بھی میرے سے قرض لے کے گئی ہے، اور میں نے دیا ہے 50,000۔ ایک مکان گر گیا تھا عیسائی کا، تو عیسائی مسیح برادری کو بھی میں نے پیسے دیے ہیں۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ ایک ہندو وہ بڑا متاثر ہوا، وہ آیا، اس کو میں نے 20,000 جب دیے، وہ اتنا متاثر ہوا کہ صوفی اسلم صاحب یہاں آتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا۔ تو الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے، اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں سبب بنا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم خان، اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کی سرزمین مدینہ الاولیاء کے اندر۔ ناظرین، یہاں پر ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کے لیے جنہوں نے اپنی ایک تحریک چلائی ہوئی ہے، اور یہ تحریک ہے تحریک محاسبہ کے نام سے، جہاں پر لوگوں کو بلا سود قرض دیا جاتا ہے، جنہوں نے یہاں پر سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ وہی سود جس کے خلاف اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک لعنت ہے، اور سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اور اللہ سے جنگ کے مرتکب ہیں۔ تو اسی سلسلے میں روک تھام کے لیے سود کی انہوں نے یہاں پر ایک تحریک چلائی ہوئی ہے۔ سید بادشاہ ہیں یہ، سید امداد حسین شاہ صاحب، تو ان کے یہاں پر ہم موجود ہیں۔ آئیں ان سے ملیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ لوگوں کو قرض کس طریقے سے دیا جاتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے لیے کیا کچھ ہونا ضروری ہے، اور یہ قرض کن لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ ملتان کے اندر مدینہ الاولیاء جو ہے یہاں پر یہ ورکنگ کر رہے ہیں، ان کی ڈیفینیٹلی ایک ٹیم ہے جو اس کو لے کے چل رہی ہے، جو ورکنگ کر رہی ہے۔ تو ان سے ملیں گے، ان سے پوچھیں گے یہ قرض کون لوگ لے سکتے ہیں، اور یہ ان کے کرائیٹیریا کیا ہے، اور کس طریقے سے لوگ یہاں پر آ کر قرض لے سکتے ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، سود کی لعنت سے لوگ بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں تحریک محاسبہ کے سربراہ، بانی سربراہ، جو بنا سود کے لوگوں کو قرض دے رہے ہیں، ایک تحریک چلا رہے ہیں ملتان کے اندر۔ ان کے بانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید امداد حسین شاہ صاحب۔ ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ تنظیم کی سوچ ان کو کس طرح آئی، یہ تحریک جو انہوں نے بنائی ہے یہ کام کس طرح کرتی ہے، کون کون سے لوگ قرض لے سکتے ہیں، آیا کہ صرف ملتان کے لوگ ہیں یا محلے کے لوگ ہیں، صرف مسلمان ہیں یا اور کمیونٹی کے لوگ بھی یہ قرض لے سکتے ہیں، اور یہ ورکنگ کس طرح کرتی ہے، یہ کام کس طرح کرے گی، اور اس کا پروسیجر کیا ہے، کتنے دن میں قرض آپ لے سکتے ہیں، کتنے دن میں قرض آپ کو یہ واپس کرنا ہوتا ہے، اور یہ اس کی فارم وغیرہ کہاں سے ملتے ہیں، یہ تمام معلومات ان کے سربراہ سے ہم لیں گے۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے اللہ کی ذات۔ شاہ صاحب ہمیں بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ یہ اس تحریک کی سوچ آپ میں کہاں سے آئی کہ بلا سود قرض اور قرض حسنہ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لانے جنگ ہے۔ تو آپ نے اس کے خلاف کس طرح ایک تحریک بنائی، کس طرح یہ سوچ آئی؟ یہ اصل میں میں نے اپنا محاسبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری فرائض اپنی اولاد کے سارے میں نے دنیاوی فرائض ادا کر دیے، تو میں نے سوچا اصلی زندگی کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ شروع میں تو محلے کی سطح پر میں نے ابتدا کی، جو اب پورے ملتان میں پھیل گئی ہے اور دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اس کا نظام یہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ سچ کیا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہوں، اور مجھے جب احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایک ضرورت مند ہے اور کرونا وبا کی وجہ سے پریشان ہے۔ شاہ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ اتنی بڑی تحریک چلا رہے ہیں، یقیناً آپ اکیلے نہیں چلا سکتے، اس میں آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک نیٹ ورک ہوتا ہے۔ تو اس میں کتنے لوگ موجود ہیں آپ کے ساتھ جو اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس کا کیا کرائیٹیریا کیا ہے، کس طریقے سے آپ کی یہ تحریک کام کر رہی ہوتی ہے؟ یہ شروع میں تو میں نے الحمدللہ اس ٹائم 3 لوگوں کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ ایک تو محلے کی مسجد کے امام ہیں، ان کو یہ میں نے عرض کی ہوئی ہے کہ بھئی جو 5 وقت نمازی ہو اور وہ صاحب بالکل ہی مطلب غریب ہو، آپ تحقیق کر لیا کریں اور اس کی آپ تصدیق کیا کریں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک فارم ہے بلا سود قرضہ تحریک محاسبہ، جو چنگی نمبر 1 پر اشرف فوٹو اسٹیٹ پہ کوئی بھی آ کے لے سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر مطلب جو آپ کا فارم ہے اس کا، یہ آپ نے کسی ایک فوٹو اسٹیٹ والی شاپ کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے فارم لیں، اس کو فل اپ کیا جائے، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ امام مسجد صاحب ہیں، ان سے بھی تصدیق کی جائے، اور پھر آ کر وہ آپ کے آفس میں اس کو سبمٹ کروانا ہوتا ہے؟ جی، وہاں سجاد صاحب ہوتے ہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہیں میرے اس تحریک کے، وہ یہ دیکھتے ہیں، ریکارڈ رکھتے ہیں۔
शाह साहब हमें ये बताइएगा, ये तहरीक जो आप चला रहे हैं तो इसके लिए चलाने के लिए लाजमन, क्योंकि आप इसमें पैसों का लेन देन कर रहे हैं, इसमें आप बिना सूद कर्ज दे रहे हैं, कर्ज़ हसना दे रहे हैं, तो शाह साहब ये बताइएगा कि ये फंडिंग कौन करता है? ये इतना पैसा जो आप सर्कुलेट कर रहे हैं डेफिनेटली लाखों में होगा, तो ये कौन, आप कोई कुछ और लोग हैं जो आपको फंडिंग करते हैं, ये जस्ट आप अपने तौर पर कर रहे हैं? इसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। जी, कोई फंडिंग नहीं करते, ना मुझे ज़रूरत है। ये मेरे ज़ाती पैसे हैं, कुछ मेरी जायदाद है, उसका किराया आता है जो मैं फ़ी सबीलिल्लाह यानी कर्ज़ा हसना की सूरत में जो मैं दे रहा हूँ। और साफ वाज़िह है कि जो इसमें वफ़ात भी पा चुके हैं उनको मैं माफ़ कर देता हूँ। और मैंने ये भी ऐलान किया हुआ है कि अगर मेरी मौत हो गई तो ये कर्ज़ा माफ़ है। नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना, शाह साहब कह रहे हैं कि जो अगर लोगों की डेथ हो जाती है, ड्यूरेशन ये जिन्होंने कर्ज़ लिया हुआ होता है, तो वो उनको माफ़ कर दिया जाता है। और ये सिर्फ इनके अपनी ज़ाती पैसों से ये इतनी बड़ी तहरीक चलाई जा रही है, ये इतना बड़ा निज़ाम ये अकेले चला रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं, कहीं से इनको कोई फंडिंग नहीं होती। तो शाह साहब लोग इसमें पैसे आपको रिटर्न भी करते हैं टाइम के ऊपर? जी, उनकी मजबूरियाँ हैं। ये जब से कोरोना वायरस आई है ना, इसकी वजह से कुछ लोग परेशान हुए हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा उनको टाइम देता हूँ। हमें ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि आप ये ख़ुद इंडिपेंडेंटली फंडिंग वगैरह कर रहे हैं और सूद के ख़िलाफ़ आपने ऐलान जंग किया हुआ है, अभी आपने कहा कि ये एक इमाम मस्जिद हैं यहाँ के मकामी, तो वो उसकी तस्दीक करते हैं और आपने कहा है कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उस मस्जिद में आकर तो उन लोगों को वो कर्ज़ दिया जाए। तो शाह साहब, क्या सिर्फ वो एक मुसलमान ही आपसे कर्ज़ ले सकता है? दूसरी कम्यूनिटी के लोग, हमारे क्रिश्चियंस और हिंदुइज़्म, इस तरह के लोग क्या आपसे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते इस कर्ज़ से? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ईसाई बिरादरी भी मेरे से कर्ज़ लेके गई है और मैंने दिया है 50,000। एक मकान गिर गया था ईसाई का, तो ईसाई मसीह बिरादरी को भी मैंने पैसे दिए हैं। और मुझे खुशी इस बात की हुई है कि एक हिंदू वो बड़ा मुतासर हुआ, वो आया, उसको मैंने 20,000 जब दिए, वो इतना मुतासर हुआ कि सूफ़ी असलम साहब यहाँ आते हैं, उनके हाथ पे मुसलमान हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है, इस बात की बहुत खुशी है कि मैं सबब बना, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो शाह साहब, ये ज़रा हमें लास्ट में बताइएगा कि जो लोग कर्ज़ ले रहे हैं, ये जो लेना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? जी, मेरा मैसेज यही है कि इस तहरीक को आपके तावन से मैं और मुखिर हज़रात को भी ये अर्ज़ गुजारिश दरख्वास्त करता हूँ कि मोहल्ले में इस किस्म का काम किया जाए और वक्त पर मुझे वापस तक की रकम दी जाए। 10 तारीख तक भी अगर रिकवरी हो जाए, यही पैसे मैं जमा करके दूसरे किसी ज़रूरतमंद को दे देता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो नाज़रीन, शाह साहब की ये अर्ज़ थी कि जो इनसे लोग कर्ज़ लेते हैं वो इनको टाइम पर वापस करें ताकि वही रकम आगे दोबारा रिसाइकल की जा सके, नए लोगों को दी जा सके, इसको दोबारा जनरेट किया जा सके। तो शाह साहब की ये अर्ज़ है उन लोगों से जो कर्ज़ ले रहे होते हैं कि वो टाइम पर वो अपनी रकम वापस करें ताकि जो और लोग हैं जिनकी मदद की जा सकती है उनकी मदद की जा सके। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पर एक भाई, हमारे मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने कर्ज़ लिया है आज हमारे सामने। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये कर्ज़ इनको कितने दिनों में मिला, इसका क्राइटेरिया क्या था, किस तरीके से इन्होंने ये कर्ज़ अप्लाई किया, और ये सारी मालूमात इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद काशिफ। तो काशिफ भाई, हमें ये बताइएगा कि ये जो कर्ज़ आज आपने लिया है 20,000 रुपये की रकम आई थिंक आपने लिया है? जी बिल्कुल, 20,000 लिए। तो ये 20,000 रुपये आपने ये इनको दरख्वास्त दी थी या क्या मामला, किस तरह इनको आपने इनको मिले हैं या इनको दरख्वास्त दे के किस तरीके से ये रकम आपको मौसूल हुई है? दरख्वास्त दी थी, ठीक है ना। मैं कारोबार की वजह से जो है ना, कारोबार जो है, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, कारोबार जो है बिल्कुल बंद हुआ पड़ा था, मेरे को पैसों की ज़रूरत थी। मैंने फिर देखा यहाँ पे शाह साहब जो है बिना सूद जो है पैसे कर्ज़ा देते हैं, तो मैंने शाह साहब से आया हूँ, इन्होंने मैंने अप्लाई करी है। इन्होंने 6-7 दिन के बाद जो है आज मुझे 20,000 रुपये इन्होंने दे दिए हैं। मतलब 6-7 दिन का इनका प्रोसीजर था, जो 6-7 दिन इनको लगे हैं आपको 20,000 रुपये रकम देने के लिए, और इसके अंदर कोई सूद शामिल नहीं है। जो भी आप जितनी रकम आपने ली है आप उतने ही देने के पाबंद हैं? जी हाँ, बिल्कुल 20,000 ही देने, 20,000 दिए हैं, 20,000 ही देने वापसी, कोई सूद नहीं है इस पर। तो माहाना किस्त होती है इसकी, हफ्ते की किस्त होती है? महीने की होती है, महीना दे पाते हैं हम। अच्छा, जो महीने की किस्त होती है ये आप लोग इनको बताते हैं कि महीने की हम इतनी किस्त दे सकते हैं, या ये शाह साहब आपको बताते हैं कि महीने की आपने इतनी रकम देनी है? नहीं, हम खुद बताते हैं जितनी हमारे गुंजाइश है। तो आपने जो आज 20,000 रुपये कर्ज़ लिया है, इसे आप किस तरह से लौटाएंगे? मतलब क्या महीने की आपने किस दिन से तय की है? मैंने 2,000 महीना दूँगा।
आप इनको 2,000 रुपये महीना करके वापस करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये भाई हमारे साथ काशिफ भाई हमारे मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। वेल्डिंग का इनका काम है। इनको आज 20,000 रुपये शाह साहब की तरफ से बिला सूद कर्ज़ मौसूल हुआ है। और इस तरह और भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं जो नाज़रीन हमारे साथ यहाँ पर हमारे एक मज़दूर तबके से हुए और भाई मौजूद हैं। इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने यह कर्ज़ लिया है या देने आए हैं या क्या मामलात हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जहांगीर। जहांगीर भाई, आप यहाँ पर कर्ज़ लेने आए हुए हैं? नहीं जी, मैं किस्त देने के लिए आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ किस्त अदा करने आए हैं, मतलब जो ऑलरेडी आप कर्ज़ ले चुके हैं। तो ये काइंडली मुझे बताइएगा कि ये कर्ज़ आपने कितने पैसे थे? ये 15,000 रुपये मैंने लिए थे 1 साल पहले, फिर मैं कुछ हालात की वजह से दे नहीं पाया पैसे, तो 3 किस्तें जमा करा चुका हूँ। आज मेरी चौथी किस्त है, देने के लिए आया हूँ मैं इनको, शाह साहब को। अच्छा, मतलब कि आपने 1 साल पहले इनसे 15,000 रुपये की रकम ली थी। और इसका क्या महीना तय हुआ था आपका? 2,000 रुपये मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा था। अच्छा, 2,000 रुपये महीना आपने कहा था मैं अपनी मर्ज़ी से इनको दूंगा। जी। और 1 साल पहले आपने लिया? जी सर, मैंने 1 साल पहले लिए। तो मतलब 1 साल के अंदर सिर्फ आप अभी बता रहे हैं तीसरी किस्त आप जमा कराने आए हैं? चौथी किस्त है, 3 दे चुका हूँ, ये आज चौथी है। अच्छा, आज आप ये चौथी किस्त इनको देने आए हैं। मतलब कि 1 साल में जो आपको 12 किस्तें देनी चाहिए थी वो आज आप चौथी जमा करवाने हैं? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आप जो इतना लेट हुए हैं, तो शाह साहब की तरफ से या जो उनकी इंतज़ाम उनकी तरफ से कोई प्रेशर या कोई परेशानी की गई? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहा, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मतलब नाज़रीन, आपने देखा, ये भाई हमें बता रहे हैं कि इनको कोई तंग नहीं किया गया। अगर किस्त देने में कोई लेट भी हो जाए तो उनकी तरफ से प्रेशराइज़ नहीं किया जाता, उनकी टीम की तरफ से कोई फोर्स नहीं किया जाता। तो भाई आप काम क्या करते हैं? मैं मज़दूरी का काम करता हूँ। मज़दूरी का काम करते हैं। तो ये एक और हमारे भाई मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखते थे जिन्होंने आपने देखा है, जो हमें बता रहे थे कि इन्होंने किस तरीके से अदा की है। 1 साल की किस्तें में सिर्फ इन्होंने 4 जमा कराई, जबकि इनको 12 जमा करानी चाहिए थी। और जो इंतज़ामिया है शाह साहब की तहरीक की तरफ से, उन्होंने भी कोई इसमें इनको फोर्स नहीं किया, कोई इनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई कि इतनी किस्तें थी और क्यों नहीं दी गई। तो ये आप जो किस्त जमा करा रहे हैं, क्या इसमें कोई सूद भी शामिल है, कोई ऊपर पैसे लिए जाते हैं? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। जितने मैंने 15,000 लिए हैं, 15,000 ही मुझे देने हैं।